Good evening, students. Today we are going to start first chapter of civics, that is the Indian Constitution. So what we will study in this chapter, we will study about the constitution of our India in this chapter. So if we have to run anything smoothly, we have to make some set of rules and regulations for that thing. Clear? So if we are playing any game also, then we have to set some rules and regulations to make it smoothly, to run it smoothly. Similarly, for any country it is necessary to set some kind of rules and regulations so that the country can work properly and smoothly. So first of all, I am going to tell you that what is constitution. So the constitution is a written document and is the source of all the laws. Clear? So now we are going to start the reading of this chapter. In this chapter, we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So, if players start holding the football in their hands and passing it around, then they are not playing football anymore. क्लियर? अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बेटा क्या बता रहे हैं कि जैसे कि अगर हम पहले फुटबॉल गेम की हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या है, कुछ रूल्स सेटअप हुए हुए हैं कि हम जो फुटबॉल है वो हमारे फुट को ही टच करने चाहिए. अगर वो प्लेयर की आर्म को टच कर जाता है तो वो आउट हो जाता है. क्लियर? तो इसी तरह से अगर किसी गेम के जो रूल्स हैं प्लेयर्स उसको फॉलो कर रहे हैं तभी वो फुटबॉल होगा. ठीक है? अदरवाइज़ अगर कोई वैसे ही बॉल पास करके एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं तो उसे हम फुटबॉल का नाम नहीं देंगे. So similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. Each of these rules help define the game and helps us distinguish one game from another. Similarly, hockey है, cricket है या कोई भी और गेम है, उनके सबके अपने अपने रूल्स होते हैं. क्लियर? सो सब गेम्स जो हैं वो अपने अपने रूल्स के साथ ही खेली जाती हैं. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. तो जो rules गेम के लिए बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Constitutive rules of the game. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kind of societies. जिस तरह से बेटा गेम्स के लिए रूल्स बनाने ज़रूरी होते हैं ताकि वो गेम प्रॉपरली खेली जा सके, इसी तरह समाज को, अपनी सोसाइटी को भी स्मूथली रन करने के लिए कुछ रूल्स बनाने ज़रूरी हैं और उन रूल्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स. और हर सोसाइटी का, हर समाज का अपना अपना अलग अलग रूल होता है. Clear? In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, and in modern countries, this consensus is usually available in रिटन फॉर्म. तो हर कम्युनिटी के अपने डिफरेंट रूल्स होते हैं. सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं लेकिन सबके अपने अलग अलग रूल्स होते हैं. क्लियर? लेकिन जो अब हमारी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उसमें जो रूल्स बने हैं वो एक रिटन फॉर्म में है और उस रिटन फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. A written document in which we find such rules is called a constitution. Underline this line. इस लाइन को अंडरलाइन करोगे सारे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हमारे रूल्स लिखे हुए हैं. इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ. We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it?
So in this chapter we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India and some of these will be the focus of different chapters in this book. ठीक है, तो हमने पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना क्यों ज़रूरी है, रूल्स सेटअप करना किसी समाज के लिए क्यों ज़रूरी है और किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और क्यों लिखा. क्लियर. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पेज. व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, हम सेट ऑफ रूल्स क्यों बनाते हैं. So today most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are डेमोक्रेटिक. देखो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है और ध्यान से इसको समझो कि आजकल क्या है, मोस्टली जो हमारा जो अब मॉडर्न ये सोसाइटीज़ हैं इसमें हर कंट्री के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. ठीक है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ हो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो. ठीक है, जैसे कि चाइना है, चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है. क्लियर. हमारे इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है और वो डेमोक्रेटिक भी है. क्लियर. सो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस. कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पर्पसेस को सर्व करता है. फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन. और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज. कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी समाज का फंडामेंटल नेचर क्या है और एज सिटीजन्स हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं और हमारे क्या राइट्स हैं. अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. हमारे कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज़ एक साथ रहती हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं, तो बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो हैं वो अलग अलग लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, अलग अलग कस्टम रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं. लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक दूसरे के इश्यूज़ के साथ मतलब जो एक दूसरे के इश्यूज़ हैं उनके साथ सहमत हो. So a constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो constitution क्या है बेटा, वो written set of rules है जो हर community को, हर citizen को उस country के follow करना पड़ता है. Clear? So if they want the country to be governed properly. So this includes not only the type of government but also core ideas. तो ये सिर्फ टाइप ऑफ गवर्नमेंट को नहीं इंक्लूड करती लेकिन उसके आइडियाज़ को भी इंक्लूड करती है. ठीक है, दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. तो ये उनके कोर आइडियाज़ को भी इंक्लूड करती है. क्लियर. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट पेज. ओके, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस थ्रू टू contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे बेटा, नेपाल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा. ठीक है, जो कि इंडिया के पड़ोसी देश ही हैं, नेबरिंग कंट्री है. अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की. नेपाल में हमारी कौन सी मेन थी गवर्नमेंट, ये क्या था, मोनार्की सिस्टम था यहाँ पर. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. तो 1990 में भी जो यहाँ का अडॉप्ट किया गया था सिस्टम, उसमें भी फाइनल अथॉरिटी जो क्या थी वो रेस्टेड विद द किंग.
a people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the किंग। तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत ऐसे सोशल मूवमेंट्स जो थे वो स्टार्ट करे, लड़े कि हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। ठीक है, तो 2006 में फाइनली वो सक्सेस उनको मिल गई, तो इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग, जिसमें कि किंग की पावर्स को वो एंड कर सके। सो द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। फिर लोगों ने वहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो था वो सेटअप स्टार्ट करा कि हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। वो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था वो उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, जिससे आज़ादी पाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो वो दोबारा अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। सो एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि हमने अभी पहले एग्जाम्पल पढ़ा था ना, फुटबॉल का एग्जाम्पल पढ़ा था कि उस गेम में क्या होता है, इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। कि अगर किसी गेम के रूल्स को हम अगर एक भी रूल हम चेंज कर देते हैं तो वो गेम ही पूरी चेंज हो जाती है। जैसे कि क्रिकेट है, उसका रूल क्या है कि बॉल बैट को टच करेगी। फुटबॉल है, उसका रूल है कि बॉल फुट को ही टच करेगी, आर्म को करेगी तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो गेम के होते हैं वही अगर उसका एक भी चेंज कर दें तो गेम चेंज हो जाती है। सो नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर इन अ न्यू सोसाइटी। तो नेपाल को एक नया सोसाइटी, एक नया समाज सेटअप करने के लिए उसे पुराने रूल्स को कम्प्लीटली चेंज करना था, उसे न्यू कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स जो थे वो लोग बना रहे थे। सो दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द country in 2015. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. फिर 2015 में उन्होंने नेपाल के जो लोग थे उन्होंने अपना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री के लिए बनाया और उनकी स्ट्रगल जो थी वो सक्सेसफुल हुई। क्लियर? The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. अब जो second important purpose क्या है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उसको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, पहले क्या था नेपाल का, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था कि राजा जो होगा वो रूल करेगा और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। सो इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. So अब क्या था कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था कि राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वही रूल करेंगे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं, ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाती हैं, ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर लिख दिया जाता है ताकि जो सोसाइटीज़ हैं वो स्मूथली रन करें। ठीक है, सो गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दीज सोसाइटीज़। तो जो डिसीजंस हैं वो सबके हक में लिए जाएं, किसी के साथ कोई भी गलत चीज़ ना हो, ना इंसाफ़ी ना हो। So in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. तो डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हम अपना नेता खुद चुनते हैं। ठीक है, हम अपना लीडर खुद ऑप्ट करते हैं जो कि लोगों के लिए ही काम करता है।
However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguards against this. अब होता है कि जिसके हाथ में बेटा पावर आ जाती है वो कई बार अपनी पावर का मिसयूज़ भी करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें इन्हीं चीज़ों से बचाता है। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो अब देखो ये नीचे एक पिक्चर दी हुई है ना, देखो बेटा, इसमें ये एक इसी तरह की स्टोरी के साथ बताया गया है कि जिसके हाथ में पावर आ जाती है तो कई बार वो भी अपनी अथॉरिटी का पावर का मिसयूज़ करता है और कई बार इनजस्टिस कर जाता है। तो वो जो हमने इलेक्ट किया है लीडर, वो हमारे साथ कुछ इनजस्टिस ना करे, इसलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो देखो इसमें ये पिक्चर में क्या बनाया हुआ है, इसमें एक क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है। ये देखो ये बच्चा मॉनिटर बना हुआ है, ठीक है। और ये मॉनिटर जो है ये बच्चों के साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, मैम को भी झूठ मतलब बता रहा है कि बच्चे किस तरह से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे और मैम फिर उन बच्चों को डांट रही है। कई बार आपके साथ भी ये होता होगा कि मॉनिटर्स जो होते हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इस पिक्चर में एक्सप्लेन की गई है। सो आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर हेयर। तो हम यहाँ पर ये वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।